94 से 120 में क्या है ना, उसकी प्रॉब्लम को हम्म। सॉल्व करने का चेष्टा करते हैं, किसी तरीके से ठीक हो जाए। किसी को हाँ बैंकरप्ट हाँ। बना दें डायरेक्टली, ये बैंकरप्ट का ठप्पा लग जाए, वो तो सही नहीं है ना। हम्म। हम्म। हाँ हाँ। तो ये उसके पहले का स्टेज है। अब पढ़ो। हम्म। 94. Application by debtor to initiate insolvency resolution process. A debtor who commits a default may apply either personally or through a resolution professional to the adjudicating authority for initiating the insolvency resolution process by submitting एक an application. एक मिनट, अभी यहाँ एक बात है। कोई कमिट डिफॉल्ट करता है, डिफॉल्ट कमिट हाँ करता हाँ। है, तो यहाँ एक हम्म। ऑप्शन दिया गया है इसको, है ना। हम्म। आइदर हाँ पर्सनली भी कर सकता है खुद से, अगर उसे डॉक्यूमेंट सब ये करना है, कोई जरूरी नहीं है कि इंसॉल्वेंसी हम्म। रिजोल्यूशन प्रोसेस को प्रोफेशनल को इन्वॉल्व करना ही है, क्योंकि उसकी भी हाँ एक हाँ। होती है ना। ठीक है, हाँ और हाँ। प्लस इसमें क्या लिखे हैं, इसमें क्या है, ट्रिपल ए फॉर एवरी पर्सनल गारंटर टू कॉर्पोरेट गारंटी, रूल नंबर 6 एप्लीकेशन फॉर बाय गारंटर, एप्लीकेशन अंडर सब सेक्शन 1 of section 94 shall be submitted in form A along with the application fee of 2000 rupees। 2000 रुपया के साथ में ये डालना पड़ेगा। The guarantor shall serve forthwith a copy of application referred to in subsection 1 to every financial creditor, है ना, and corporate debtor to whom the corporate debtor for whom the guarantor is a personal guarantor। ठीक है ना, ये फॉर्म प्रोसीजर है, क्योंकि हमें इसमें प्रैक्टिकली करना है तो प्रैक्टिकली जानना पड़ेगा, राइट है ना। हम थियोरेटिकली तो पढ़ नहीं रहे, थियोरेटिकली तो हमें करना नहीं है सिर्फ। हाँ हाँ। चलो। Where थोड़ा सा ऊपर में 2 नंबर, where the debtor is a partner of a firm, such debtor shall not apply under this chapter to the adjudicating authority in respect of the firm unless all or a major of the partners of the firm file the application jointly. हम्म। 3. An application under subsection 1 shall be submitted only in respect of debts which are not excluded debts. एक्सक्लूडेड डेट्स को हटा देगा, उसके हाँ। वो हटा करके वो सब लिस्ट में लिस्ट बनाना पड़ेगा ना, क्या डेट है नहीं है, वो सारे डेट को आप बाद कर दो, बाद करके उसके लिए फाइल करो, है ना। हम्म। हाँ। A debtor shall not be entitled to make an application under subsection 1 if he is a an undischarged bankrupt, B. Undergoing a fresh start process, हम्म। C. Undergoing an insolvency resolution process, or D. Undergoing a bankruptcy process. पहले ही से ही चल रहा है तो फिर से फाइल कैसे हाँ। कर सकता है, नहीं कर सकता है ना। नहीं नहीं। यही बात है। हाँ। 5. A debtor shall not be eligible to apply under subsection 1 if an application under this chapter has been admitted in respect of the debtor during the period of 12 months preceding the date of submission of application under this section. ठीक है ना, 12 महीना हुआ नहीं, 12 महीना हुआ नहीं, एडिटर शैल नॉट बी एलिजिबल अंडर हाँ सेक्शन एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12 महीना पहले ही एक बार हुआ था, ठीक है ना, फिर से बोलेगा कि हम बैंकरप्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, वो नहीं हो सकता है हाँ। 12 महीना के अंदर में, हम्म। है ना। 6 6 महीना में आ हाँ गया कोई, तो 12 महीना पहले हाँ। भाई बीतने दो हम्म। एप्लीकेशन, उसके बाद फिर दोबारा आना। हम्म। हम्म। The 6. The application referred to in subsection 1 shall be in such form and manner and accompanied with
such fees as may be prescribed. ठीक है, ये तो पढ़ेंगे प्रैक्टिकल वाला, ठीक है ना। Eh, 95 application by creditor to initiate insolvency resolution process. 1. A creditor may apply either by himself or jointly with other creditors or through a resolution professional to the adjudicating authority for initiating an insolvency resolution process under this section by submitting an application. 2. A creditor may apply under subsection 1 in relation to any partnership debt owed to him for initiating an insolvency process against anyone or more partners of the firm, be the firm. 3. Where an application has been made against one partner in a firm, any other application against another partner in the same firm shall be presented in or transferred to the adjudicating authority in which the first mentioned application is pending for adjudication, and such adjudicating authority may give such directions for consolidating the proceedings under the applications as it thinks just. An application under subsection 1 shall be accompanied with details and documents relating to a debts owned by the debtor to the creditor or creditor submitting the application for insolvency resolution process as on the date of application. B. The failure by the debtor to pay the debt within a period of 14 days of the service of the notice or demand, and C. Relevant evidence of such default or non-payment of debt. 5. The creditor shall also provide a copy of application made under subsection 1 to the debtor. 6. The application referred to in subsection 1 shall be in such form and manner and accompanied by such fee as may be prescribed. 7. The details of documents required to be submitted under subsection 1 shall be such as may be specified. कंक्लूड करेंगे इसको। हाँ हाँ एप्लीकेशन बाय क्रेडिटर, इसमें बहुत सारा है, मतलब टोटल 7 सबसेक्शन है ना। नहीं, एक मिनट, ये 94 95 94 में 95 में 7 सेक्शन है, ठीक है ना, 7 सबसेक्शन है। तो यहाँ एक तो है कि भाई आप खुद से भी कर लो या ज्वाइंटली कर लो, ठीक है ना। हाँ दूसरा दूसरा वाला में क्या कहता है, दूसरा वाला में क्या कहता है, रिलेशन टू पार्टनरशिप डेट ओ टू हिम, जिसके लिए वो ओ टू हिम फॉर इनिशिएटिंग इंसॉल्वेंसी प्रोसेस अगेंस्ट वन और मोर पार्टनर ऑफ द फर्म। किसी एक पार्टनर का जो फर्म है, राम श्याम ये भी, उसके लिए भी कर सकता है, ठीक है ना, और पूरे फर्म के लिए भी कर सकता है, ठीक है ना। तीसरा नंबर में, when application is made under one partner of the firm, any other application made under other partner same shall be presented into the transfer to the dedicating of one partner of the firm। अगर किसी एक पार्टनर का फर्म के लिए एप्लीकेशन कर दिया गया, एनी अदर एप्लीकेशन against other partner of firm shall be presented in or to transfer to adjudicating authority in which the first mentioned application is pending for adjudication, and such adjudication may give such directions consolidating the proceedings under the application as think fit।
मान लो कि किसी एक जगह किसी मिस्टर ए के लिए जो है ना वो एप्लीकेशन कर दिया, मिस्टर बी जो है दूसरे जुडिक्शन में रहता है, ठीक है ना। तो दोनों का जो प्रोसेस है, दोनों को एक ही स्थान पर लेके आने के लिए कंसोलिडेट करेगा। Where the application has been made against one partner from any application made permission to transfer to the first mentioned application is pending. Such a division may give direction for consulting exception as it think fit. ठीक है ना, दो लोगों का अलग अलग जो है करने में तो मुश्किल होगा, एक ही जगह लेकर के आएगा। तीसरा वाला में an application under subsection 1 shall be with the detail relating to the एप्लीकेशन में क्या क्या इक्विपमेंट रहेगा, डेट ओड बाय डेटर्स और क्रेडिटर्स सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर इंस्टॉलमेंट, डेट ऑफ एप्लीकेशन, डेट क्रेडिटर और क्रेडिटर सबमिटिंग द एप्लीकेशन, डेट ओड बाय डेटर्स टू द क्रेडिटर और क्रेडिटर्स सबमिटिंग द एप्लीकेशन, कितना बाकी है, ठीक है, वो तो मामूली नॉर्मल बात है, कितना बाकी है वो तो बताना पड़ेगा ना। द फेलियर बाय द डेट टू पे डेट विद इन 14 डे फ्रॉम द सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड। तो एप्लीकेशन भी एक सिचुएशन में देगा कि पहले तो क्रेडिटर डिमांड नोटिस भेजेगा, डिमांड नोटिस भेजेगा, डिमांड नोटिस भेजा, डिमांड नोटिस के बाद 14 डे के अंदर वो पेमेंट नहीं किया, हाँ, उसके बाद में ये एप्लीकेशन देगा, 14 डे का मौका देगा, ठीक है ना। हाँ वो ठीक है। हाँ हाँ, ये ये भैया, ये जो लोन होता है उसमें तो एक गारंटर माने वो रेफरेंस ये सब लेता है, तो उन लोगों का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है? ये अलग है, अभी बहुत सारा कंफ्यूजन तुम्हारा दूर होगा, अभी एक एक करके करते चलो, एक बार उस बेयर एक्ट को करते चलो, फिर सबको लिंक करा देंगे, केस हाँ हाँ। स्टडी केस स्टडी इसको के तौर पर एक्चुअल सिचुएशन क्रिएट करेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। हाँ हाँ। रेलिवेंट एविडेंस ऑफ सच डिफॉल्ट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ डेट, ठीक है। हाँ। हम्म द हम्म क्रेडिटर अपना वो जो क्रेडिटर एप्लीकेशन को भी देगा ना है। भाई, एक नॉर्मल सी बात है, हाँ हाँ क्रेडिटर हाँ ने वहां जमा किया हाँ डिपार्टमेंट में पेपर, हाँ, तो उसका कॉपी। उसकी कॉपी भी देगा कि भाई हमने किया, तो अचानक से वो डिपार्टमेंट क्रेडिटर के पास में आ जाएगा, ये रूल बना हुआ कि भाई वो भी तो अपनी तैयारी करेगा। हाँ हाँ। हम्म हम्म। हाँ The application referred to in subsection 1 shall be in such form and manner and accompanied by such fee. हाँ, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करने का, हाँ, हाँ हाँ हाँ। डॉक्यूमेंट भी जो लगाएगा वो भी ठीक है। अभी ये है एंटरिम मोरिटोरियम, सेक्शन एंटरिम मोरिटोरियम, ये एक वर्ड है, इस वर्ड को समझना पड़ेगा। एंटरिम मोरिटोरियम क्या होता है, मोराटोरियम, हाँ। मोराटोरियम मतलब वहाँ पढ़ो उसमें। When an application is filed under section 94 or section 95, an interim moratorium shall commence on the date of the application in relation to all the debts and shall cause to have effect on the date of admission of such application and be during the interim moratorium period. One, any pending legal action or proceeding in respect of any debt shall be deemed to have been stayed, and two, the creditors of the debtor shall not initiate any legal action or proceedings in respect of any debt. Two, where the application has been made in relation to a firm, the interim moratorium under subsection 1 shall operate against all the partners of the firm as on the
date of the application. 3. The provisions of subsection 1 shall not apply to such transaction as may be notified by the central government in consultation with any financial sector regulator. अच्छा अच्छा, कुछ ऐसा फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर कैसे हो गया, सेबी जैसे हो गया, ठीक है ना। हाँ हाँ सेबी हाँ फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर हो गया, हम्म। ठीक है ना। हाँ कोई ऐसा ट्रांजैक्शन, कोई ऐसा हम्म ट्रांजैक्शन shall not apply to transaction as may be notified central government in consultation with the सेबी का कोई नोटिफाइड ट्रांजैक्शन, ऐसा नहीं है कि सेबी का सारा ट्रांजैक्शन। हाँ कुछ कुछ हाँ ट्रांजैक्शन नोटिफाइड अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया कि मोरेटोरियम हम्म। सब जगह लगाओ, एंट्री मोरेटोरियम, ठीक है ना, हाँ 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 लेकिन इस ट्रांजैक्शन पर मोरेटोरियम नहीं लगेगा। हम्म। वो ट्रांजैक्शन क्या ट्रांजैक्शन हो सकता है कि जो फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर, जो सेबी वाला जो कहानी है, सेबी ने हम्म। कुछ अगर इम्पोज कर रखा है, तो वहाँ हाँ हाँ मोरेटोरियम से यहाँ बचने का भी आधार है ना। मोरेटोरियम क्या होता है, सारा लीगल पेंडिंग एक्शन जो है सब सब स्टेड हो जाता है, ठीक हाँ है ना। हाँ द क्रेडिटर शैल हम्म नॉट बी इनिशिएट एनी लीगल एक्शन, कोई और भी हम्म। लीगल एक्शन कोर्ट में किसी को पुलिस थाना में नहीं कर सकता है, ठीक है ना। हाँ हाँ कोई क्रेडिटर, हम्म। वो अब हम्म। एक तरीके से उस पर लाइबिलिटी रिस्ट्रिक्शन भी आ गया, एक तरह से उसके ऊपर में सेफ्टी भी आ गया। नहीं तो किसी के हाँ ऊपर हाँ में अगर कोई क्रेडिटर एडिटर है, तो वहाँ क्या हो हम्म। सकता है, क्रेडिटर मारपीट वाला भी तो कॉन्सेप्ट हो जाता है ना कुछ, हाँ हाँ वो तो होता ही है। है ना, वो होता है ना। हम्म। वो हाँ सब कॉन्सेप्ट हो गया, कुछ कहीं और कुछ केस कर दिया, पुलिस थाना वाला केस हम्म लगा करके, वो सब कुछ नहीं हम्म। होगा, ठीक है ना। ओके। तो अभी इसे कंक्लूड कर लेते हैं। ये हम्म मोरेटोरियम कब से लगेगा, ये बहुत बड़ा वाइटल पॉइंट है। फ्रॉम द कमांड्स फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, डेट ऑफ एप्लीकेशन इन रिलेशन टू ऑल डेब्ट एनसीजेस टू हैव फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन। हम्म। जिस दिन एडमिशन हो गया, जिस दिन एडमिशन हो हम्म गया, एडमिशन तो हम्म। होगा बाद में ना। आज किसी ने हाँ हाँ 14 तारीख को अप्लाई किया, एडमिशन तो दो हम्म। पाँच दिन 10 दिन के बाद लगाएगा ना, लेकिन माना जाएगा कि इंटरियम मोरेटोरियम का जो डेट जो पकड़ा जाएगा ना, उस डेट के हम्म। एप्लीकेशन से पकड़ा जाएगा, ठीक हाँ है ना। हाँ उस डेट हम्म में, उस डेट के बीच में भी अगर कोई लीगल पेंडिंग है, केस वेस कोई कर दिया उस बीच में, हम्म ठीक है ना, तो हम्म। वो भी स्टे हो जाएगा, ओके। है ना। हम्म। एप्लीकेशन कर दिया था, किसी को पता चला ये तो हम्म। एप्लीकेशन कर दिया, अब वो चाहेगा कि हाँ नहीं ये तो एप्लीकेशन से, इसमें इसमें मैं नहीं जाने दूं। वो हम्म अगर एप्लीकेशन करने के बाद भी कोर्ट को जरूरी नहीं है कि आईबीबीआई जो है, बोर्ड जो है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, उसको एडमिट ही कर लेगा, ठीक है ना। हाँ हाँ एडमिट करने के हाँ ऊपर में भी रीजन देखेगा, कोई फ्रॉड व्रॉड का केस अगर है, किसी बंदे ने हम्म फ्रॉड के इंटेंशन से ऐसा किया है, ठीक है ना, हाँ हाँ तो वो कोर्ट को हम्म एडमिट ही नहीं करेगा, है ना। हम्म। तो बोलोगे भाई हाँ जाओ इसमें कोर्ट वाले केस में ही रहो तुम, है ना। फ्रॉड वाले हम्म केस में जो धारा के 420 लगा हुआ है जिसके ऊपर में, तो 420 हम्म वाले केस में सल्टो तुम, इधर मत आओ। हम्म ये अलग कहानी है, ये सीधा साधा लोग के लिए कहानी है, नॉर्मल कहानी हम्म है ना। हम्म तो भाई नॉर्मल इंसान है तो उसका एडमिट कर लेगा, 420 हम्म वाला इंसान है तो उसका एडमिट ही नहीं करेगा, हम्म एडमिट ही नहीं करेगा। और उस हम्म जिसका एडमिट कर लिया उसे जो है, उसको उसके ऊपर में प्रोटेक्शन आ गया ये सब चीज का। हम्म। हम्म। लेकिन प्रोटेक्शन किसके लिए नहीं आएगा, सेबी वबी वाला सब कहानी के लिए, केस के लिए जिसका हम्म स्पेशल नोटिफिकेशन होगा। हम्म अपॉइंटमेंट ऑफ, एक मिनट हम आ रहे हैं जरा सा। हाँ, अभी अपॉइंटमेंट ऑफ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, ठीक है ना। अपॉइंटमेंट ऑफ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, सेक्शन 22 में भी अपॉइंटमेंट ऑफ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, लेकिन वहाँ पर कंपनी का एलएलपी के लिए अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है ना। एलएलपी के लिए अपॉइंटमेंट होता है। तो यहाँ ब- अभी इसके बहुत सारे पार्ट आएंगे। तो हाँ, अपॉइंटमेंट ऑफ रेजुलेशन प्रोफेशनल। If the application under section 94 or 95 is filed through a resolution professional, the adjudicating authority shall direct the board within 7 days
of the date of the application to confirm that there are no discrepancy proceedings pending against resolution professional. अच्छा, मान लो मिस्टर बैंकरप्ट है, मान लो कोई बैंकरप्ट है, तो मिस्टर बीकेटी, ठीक है ना, मिस्टर बीकेटी, मिस्टर विकेटी हैं, विकेटी हैं, वो क्या किए हैं, वो उसको तो खुद से पता नहीं है, उसने किसी आईपी को ले लिया, रिजोल्यूशन हाँ प्रोफेशनल को ले लिया, प्रोफेशनल को हाँ लिया, उनको उनके थ्रू फाइल करवा दिया हाँ थी, हाँ और वो जो ये भी हो गया, क्या बोलते हैं, ये भी, अच्छा, if resolution professional, if application under section 94(5) file through the resolution professional, it shall direct the board एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी। देखना इसमें जो ऑथोरिटी है ना, अलग अलग ऑथोरिटी है, हाँ ऑथोरिटी क्या है, अलग अलग है। जैसे क्या ऑथोरिटी क्या है, जहाँ केस है, एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी, यहाँ केस लड़ा जाता है, ठीक है ना, ये जगह में, मतलब एनसीएलटी है ये, हाँ जिसको एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी बोलते हैं। बोर्ड क्या है, हाँ बोर्ड जैसे आईसीएआई का बोर्ड है, सीए इंस्टीट्यूट का बोर्ड हुआ ना, हाँ हाँ बोर्ड हाँ अपने अपने जो मेंबर हैं, जो सीए हैं, उसको रेगुलेट करता है, उसको संभालता है, उसको डिसिप्लिन में रखता है ना, ठीक है ना, बोर्ड है। तो एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी को थोड़ी नहीं पता है कि कौन सा आईपी जो है का क्या स्टेटस है, नहीं है ना, इसके ऊपर में डिसिप्लिनरी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो उसके पास में एप्लीकेशन आया, तो वो तो पहले पहले बोर्ड को भेजेगा कि भाई ये जो बंदा हमारे पास में अप्लाई किया है, पहले ये हम्म, आदमी ठीक है कि नहीं, हम्म, पहले इसका तो देखो हालचाल, है ना। हाँ वो हाँ काम हाँ 7 दिन के अंदर में करेगा, ऑलवेज, ठीक है ना, 7 डे के अंदर में भेज देगा। आज आया 14 तारीख, 21 तारीख तक हम्म, जो लगेगा, जल्दी से जल्दी करता, 7 दिन का मैक्सिमम समय लिया गया है, कि वही डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स नहीं दिया गया है। बोर्ड, आईबीबीआई जो प्रोफेशनल को देखता है, वो बोर्ड सेल विद इन 7 डे ऑफ रिसिप्ट ऑफ, Session communicate to the other confirming the appointment of resolution professional, rejecting the appointment of resolution professional, nominating the other domain of the। तो बोर्ड क्या बोलेगा कि नहीं, ये आदमी ठीक है, ये मिस्टर जो भी है ठीक है, इसको आपका अपॉइंटमेंट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम सारा वेरीफाई कर लिए, ठीक है ना। हाँ हाँ और या फिर बोलेगा नहीं, ये तो ऑलरेडी ब्लैक लिस्ट में है, इसे आप जो है रिजेक्ट कर दीजिए, और 2-4 नाम और दे देगा, उनके पास लिस्ट है ना इम्पैनल का, हाँ हाँ दो हाँ चार लिस्ट में से दे दिया कि इनसे आपसे सेलेक्ट करवा लीजिए काम, ये हो गया। 7 7 7 दिन, दोनों में 7 दिन, 7 दिन में ये भेजा, 7 दिन में रिप्लाई आ गया, 14 दिन में, है ना। यहाँ थोड़ा जल्दी आ गया, बाकी सब जगह देखेंगे कि बोर्ड जो है 10 दिन लेता है समय। हम्म, हम्म, यहाँ थोड़ा जल्दी आ गया। हम्म, हाँ हम्म, 3. Where an application under section 94 or 95 is filed by the debtor or the creditor himself, as the case may be, and not through the resolution professional, the adjudicating authority shall direct the board within 7 days of the filing of such application to nominate a resolution professional for the insolvency resolution process. हाँ, अभी देखो यहाँ क्या है, जब डेटर ने 94 या 95 डेटर क्रेडिटर ने, 94 में डेटर के द्वारा खुद से हुआ था, 95 में हाँ क्रेडिटर ने किया था, वो डायरेक्ट फाइल हाँ कर दिया था, ठीक है ना, हाँ डायरेक्ट फाइल करता नहीं है, लेकिन कर दिया, ऑप्शन दिया गया यहाँ, ठीक है ना, फाइल हम्म, दिया गया था, इंस्टेड थ्रू द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एंड नॉट थ्रू द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। यहाँ 3 नंबर में बोलता है कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के द्वारा अगर फाइल नहीं किया, तो फिर एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी जो है बोर्ड को 7 दिन के अंदर में डायरेक्शन देगा कि भाई आप 2-4 नाम दो, नॉमिनेट करो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का। तो फिर बोर्ड जो है नॉमिनेट करेगा, यहाँ थोड़ा ज्यादा समय लगता है, 10 डे के अंदर में,
10 दिन में 2-4 नाम दे देगा या एक नाम दे देगा, नॉमिनेट कर देगा। नॉमिनेट करेगा तो भाई नॉमिनेट करने के लिए 10 दिन समय लेगा, तो वो तो पूछेगा ना भाई अपने प्रोफेशनल से, आप इस असाइनमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं। तो ये हाँ 10 हाँ दिन के हाँ अंदर में वो सारा भी प्रोसेस कर लेता है ना। फोन आ हाँ। जाता है, पूछ लेता है, लेटर आ जाता है, ईमेल आ जाता है, ईमेल में फटाफट एक्सेप्ट करवा लेता है ना। चलो। 5. The educating authority shall by order appoint the resolution professional recommended under subsection 2 or as nominated by the board under subsection 4. ठीक है। 6. A resolution professional appointed by the educating authority under subsection 5 shall be provided a copy of the application for insolvency resolution process. The resolution appointed by the under subsection B shall be provided a copy of application or independent process। भाई जो अपॉइंटमेंट हुआ, अगर कोई अपॉइंटमेंट हुआ, दूसरा अपॉइंटमेंट हो गया, ठीक है ना। अगर जो पहला वाला केस में क्या था, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के थ्रू हुआ था, दूसरे वाले के केस हाँ में हाँ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, पहला वाला केस में रिजोल्यूशन प्रोसेस के थ्रू हुआ था, लेकिन आ गया दूसरे को नॉमिनेट कर दिया, पहले वाले को हटा दिया, तो नए वाले हाँ को हाँ तो रिजोल्यूशन प्रोसेस का सारा एप्लीकेशन का कॉपी चाहिए होगा। हाँ हाँ हाँ। तो वही यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोवाइडेड किया जाएगा, ठीक है ना। हम्म, अभी हाँ यहाँ अपॉइंटमेंट हुआ, ठीक है ना, और हाँ। उसको रिजोल्यूशन प्रोसेस कॉपी दे दिया गई, अब वो पढ़ेगा अपना, ठीक है, उसे पढ़ने दो हम्म, अभी, ठीक है पढ़ने दो, तब तक हम 98 में चलते हैं। हम्म। Replacement of resolution professional. 1. Where the debtor or creditor is of the opinion that resolution professional appointed under section 97 is required to be replaced, he may apply to the educating authority for the replacement of such resolution professional. 2. The educating authority shall, हम्म within 7 days of the receipt of the application under subsection 1, make a reference to the board for replacement of the resolution professional. 3. The board shall, within 10 days of the receipt of reference from the educating authority under subsection 2, recommend the name of the resolution professional to the educating authority against whom no disciplinary proceedings are pending. 4. Without prejudice to the provisions contained in subsection 1, the creditors may apply to the educating authority for replacement of the resolution professional where it has been decided in the meeting of the creditors to replace the resolution professional with a new resolution professional for implementation of the repayment plan. 5. Where the educating authority admits an application made under subsection 1 or subsection 4, it shall direct the board to confirm that there are no disciplinary proceedings pending against the proposed resolution professional. 6. The board shall send a communication within 10 days of receipt of the direction under subsection 5, either A. Confirming appointment of the nominated resolution professional, or B. Rejecting appointment of the nominated resolution professional and recommend a new resolution professional.
7. On the basis of communication of the board under subsection 3 or subsection 6, the educating authority shall pass an order appointing a new resolution professional. 8. The educating authority may give directions to the resolution professional replaced under subsection 7 to share all information with the new resolution professional in respect of the insolvency resolution process and to cooperate with the new resolution professional in such matters as may be required. 99. Submission of report by resolution professional. 1. Resolution professional shall examine the application referred to in section 94 or section 95 as the case may be within 10 days of his appointment and submit a report to the educating authority recommending for approval or rejection of the application. 2. Where the application has been filed under section 95, the resolution professional may require the debtor to prove payment of the debt claimed as unpaid by the creditor by furnishing a evidence of electronic transfer of the unpaid amount from the bank account of the debtor. B. Evidence of encashment of check issued by the debtor. Or C. A signed acknowledgement by the creditor accepting receipt of dues. ये सी वाला पॉइंट इसमें क्यों लिखा? Assigned assigned acknowledgement by creditor accepting the receipt of dues. Receipt of dues. हाँ इसमें साइंड इनकेसमेंट एक्नॉलेजमेंट बाय क्रेडिटर तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? अगर कोई क्रेडिटर दे रहा है मतलब तो वो तो वो मान ही कंफर्मेशन रहा है होता है ना, कि कंफर्मेशन देता है ना, हाँ जैसे कि मान लो कि क्रेडिटर भी हाँ कंफर्मेशन देता है ना, उसी टाइप से हाँ हो गया साइन एक्नॉलेजमेंट बाय द क्रेडिटर की एक्सेप्टिंग द रिसिप्ट ऑफ ड्यूज कि भैया हम किसी से इतना रुपया पाते हैं, 100 रुपया पाते हैं, ठीक है ना? हाँ हाँ अगर हम किसी से 100 रुपया पाते हैं तो वो भी सामने वाला भी लिखवाएगा ना कि तुम 100 ही रुपये पाते हो, 200 रुपया नहीं पाते हो, तो वो उसके लिए हाँ भी हाँ एक ये हो गया ना, प्रूफ हो गया ना। हाँ हाँ, हम्म। सेफ्टी भी तो है एक तरीका से कि भी हम 100 रुपये पाते हैं, कि अब बाद ना में ना अगर कह देगा कि ये जब हाँ इसमें ये वाला चीज है कि पेमेंट कर दिया उसका प्रूफ दे रहा है एक्सेप्टिंग द एनईएफटी ये रिसिप्ट ऑफ सब से। ड्यूज, हाँ हाँ एक्सेप्ट कर रहा है कि भैया हमने इतना रुपया हमें पाना है। साइन एक्नॉलेजमेंट हाँ बाय क्रेडिटर एक्सेप्टिंग द रिसिप्ट ऑफ ड्यूज। ठीक है, इसको अभी 3 मिनट्स बचा, इसको पढ़ लो इतना, फिर कंक्लूड कर लेंगे इसको, हाँ हाँ। ठीक है ना? 3. Where the debt for which an application has been filed by a creditor is registered with the information utility, the debtor shall not be entitled to dispute the validity of such debt. 4. For the purpose of examining an application, the resolution professional may seek such further information or explanation in connection with the application as may be required from the debtor or the creditor or any other person who in the opinion of the resolution professional may provide such information. 5. The person from whom information is
information or explanation is sought under subsection 4 shall furnish such information or explanation within 7 days of receipt of the request. 6. The resolution professional shall examine the application of the application and ascertain that A. The application satisfies the requirements set out in sections 94 or 95. B. The applicant had provided information and given explanation sought by the resolution professional under subsection 4. 7. After examination of the application under subsection 6, he may recommend acceptance or rejection of the application in his report. 8. Where the resolution professional finds that debtor is eligible for a fresh start under Chapter 2, the resolution professional shall submit a report recommending that the application by the debtor under Section 94 be treated as application under Section 81 by the adjudicating authority. 9. The resolution professional shall record the reasons for recommending the acceptance or rejection of the application in the report under subsection 7. 10. The resolution professional shall give a copy of the report under subsection 7 to the debtor or the creditor as the case may be. ठीक है, अभी हो गया. अब एक ब्रेक लेते